مہدی مددی جب بھی جس کو بھی جانا ہو کربلا، جانا ہو کربلا، مولا کہتے ہیں جب بھی جس کو بھی جانا ہو کربلا، زوار جس کو بننا ہو مولا حسین کا، لازم ہے اس کے واسطے عباس کی رضا، عباس کی رضا، عباس بلا لو، زوار بنا دو، ایک بار ہمیں روزہ شبیر دکھا دو، مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، جانا ہے کربلا، جانا ہے بخدا مولا کے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے الگ الگ مواقع پر انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے، جن میں 1,24,000 انبیاء اور 313 رسول ہمیں باقاعدہ طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں، جن کا کام تھا انسان کو ہدایت کے راستے پر لا کر اللہ سے ملحق کر دینا۔ لیکن ہم نے تاریخ بشریت میں دیکھا کہ بہت سے انبیاء کی امتوں نے اپنے نبی کو قتل کیا اور راہ ہدایت سے فرار کرتے ہوئے شیطان کو اپنا سردار بنا لیا، جس کے بدلے میں پروردگار نے پھر عذاب بھیجا، اور یہ عذاب کبھی آسمان سے تو کبھی زمین سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں قوم عاد، قوم سمود اور حضرت نوح کے دور والا عذاب ہمیں بہت سی باتیں یاد دلاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان آج کے دور میں بھی اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا کر شیطان کے چنگل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہوگا، اس سے پہلے حق اور حقیقت اور انصاف کو پھیلانے کے لیے پروردگار پھر ایک نمائندے کو بھیجے گا، جس کا انتظار دنیا کی ہر قوم کر رہی ہے، اور بالخصوص اہل تشیع امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے بے چین اور بے کل ہیں کہ کس طرح امام علی مقام سے ملاقات ہو جائے۔ ظہور سے پہلے جو علامات بیان ہوئیں، مسلسل ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی علامتوں کے درمیان 5 یقینی علامتوں کا ذکر کیا کہ اس کے بغیر ظہور ممکن نہیں ہے، جن علامتوں میں کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ لیکن ظہور سے ٹھیک 4 مہینے پہلے ماہ رمضان مبارک میں کچھ ایسا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر حق والے حق کی طرف آ جائیں گے اور باطل کی طرفداری کرنے والے امام سے دور ہو جائیں گے۔ لہذا روایات میں آیا کہ ماہ رمضان کے ابھی 2 ہی دن گزرے ہوں گے اور شب 3 کو آسمان پر ایک ایسا ہاتھ بلند ہوگا اور چاند پر ایسا چہرہ اور سینہ ظاہر ہوگا جسے دیکھ کر حق والے امام علی مقام کے ظہور کے لیے امیدوار ہو جائیں گے۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یظہر فی السماء آیۃ للیلتین تخلوان من شہر رمضان، اور ماہ رمضان کی 2 شب گزرنے کے بعد آسمان پر ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ کتاب الملاحم والفتن، سید بن طاؤس، صفحہ 35۔ اس کے علاوہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت وارد ہوئی کہ جس کو بحار الانوار جلد 52 صفحہ 233 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہیں نعمانی کی کتاب الغیبت میں صفحہ نمبر 134 اور منتخب الاثر صافی کی 441 نمبر صفحے پر یہ ملتا ہے کہ جس سال آسمان سے چیخ بلند ہونے والی ہوگی، اس سے پہلے ماہ رجب میں کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔
सवाल किया गया वो निशानियां कौन सी हैं? फरमाया कि आसमान पर पाए जाने वाले चांद में एक हाथ नमूदार होगा कि जिसको हर कसोनाकस अपनी आंखों से देखेगा। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सीना और चेहरा सूरज के चेहरे में देखा जाएगा। यानी इस रवायत के आईने में चांद के साथ साथ सूरज में भी कुछ ऐसी अलामतें ज़ाहिर होंगी जो इमाम अली मकाम के ज़ुहूर की तरफ इशारा करेंगी। पिछली क्लिप में मैंने जिक्र किया था कि माह जमादी और रजब से ये निशानियां नमूदार होने लगेंगी कि जहां जमादुस्सानी में बारिश और माह रजब में इस बारिश के रुकने पर 15 रजब को सुफियानी का खरूज होगा, तो फिर ये सुफियानी रजब और शाबान में इराक़ और शाम पर मुसल्लत होते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएगा, यहाँ तक कि माह रमज़ान की शब 3 में आसमान पर यह हाथ नज़र आएगा और फिर शब 23 में शब जुमा को एक आवाज़ बुलंद होगी जो हतमी अलामतों में से है, जिसे निदाए आसमानी के नाम से याद किया जाता है। ये निदाए आसमानी या सह आसमानी जो इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहू के ज़ुहूर की अलामात में से है कि ये आसमान से एक निदा आएगी। अहादीस के मुताबिक ये निदा इमाम ज़माना के ज़ुहूर की बशारत, उनके नाम और शियों की हक़ानियत पर मुश्तमिल होगी। इसी दिन के इख्तिताम पर शैतान भी उससे मुशाबिह एक आवाज़ बुलंद करेगा जिसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान और उसके पैरोकारों को बरहक करार देगा, जिसकी वजह से बाज़ लोग तरदीद और शक में पड़ जाएंगे। यही एक वजह है कि हमारी दुआओं में सबसे बड़ी दुआ यही होनी चाहिए कि हमारा ईमान ता वक्त आखिर सालिम रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे अफराद हैं जो पूरी ज़िंदगी इमाम के ज़ुहूर का इंतज़ार करते होंगे, लेकिन इस शैतानी आवाज़ के बुलंद होने पर वो इमाम अली मकाम के गिरोह से निकलकर दूसरों की तरफ मुतवज्जे होना चाहेंगे और उनके जहन में शक व तरदीद पैदा हो जाएगा। निदाए आसमानी के लिए अहादीस में बाज़ खुसूसियात ज़िक्र हुई हैं। उनमें से एक ये है कि हर इंसान अपनी ज़बान में उसे सुन लेगा और इसके बाद इमाम मेहदी का नाम हर एक की ज़बान पर होगा। इस वाक़े के रूनुमा होने को दो तरीक़ों से बयान किया गया। एक गिरोह का कहना है कि ये सब मोजज़े से हो जाएगा, जबकि दूसरा गिरोह ये कहता है कि मुमकिन है कि ये मादी वसाइल की मदद से और तबीई तौर पर हो। हालांकि पिछले एक बरस में और बिलखुसूस पिछले 6 महीनों में हमने ये बाकायदा तौर पर देखा है कि जो कोई भी इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहू शरीफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उसकी ज़बान पर भी अब इमाम वक्त का नाम नज़र आता है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में ख़ास मौक़े के ऊपर इमाम अली मकाम का नाम लेकर लोगों को बातें करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के दौर में बहुत से मुसलमान नौजवान उम्मीदवार होकर ऐसी क्लिप्स बनाते हैं कि जिनके पीछे म्यूज़िक की जगह इमाम अली मकाम और उनकी आर्मी के कसीदे पढ़े जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हमें अब ताज्जुब नहीं है कि जब इमाम अली मकाम आने वाले होंगे तो उनके आने से पहले एक माहौल साजगार होगा और लोग इमाम अली मकाम को पहचान कर उनके हाथ पर बैअत करेंगे। इस आवाज़ की कि जिसका तज़किरा किया गया चंद खुसूसियात हैं जिनको किताबों में दर्ज किया गया है। मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, युनादी मुनादिम मिनस समाई बिस्मिल क़ाइमी अलैहिस्सलाम फयस्मउ मन बिल मशरिक़ी व मन बिल मग़रिब। एक मुनादी आसमान से क़ाइम के नाम से निदा देता है और मशरिक़ व मग़रिब में बैठा हर शख्स उसे सुनता है। अहादीस के मुताबिक आसमानी निदा में इमाम का नाम और उनकी खुसूसियात शामिल हैं। किताब कमालुद्दीन जिल्द 2 सफ़ा 372 हदीस 5। बाज़ रवायात के मुताबिक आसमानी निदा में इमाम अली की हक़ानियत और शियों की निजात और हिदायत याफ्ता होना भी शामिल है। इसी तरह ये भी रवायात में आया कि आसमानी निदा में इस्तकबार की हुक्मरानी का खात्मा और पैगम्बर अकरम की उम्मत में से बेहतरीन शख्स की हुक्मरानी की खबर और हज़रत मेहदी से मिलने के लिए लोगों को मक्का आने की दावत दी जाएगी। किताब अल-इख्तिसास शेख मुफीद सफ़ा 208 और किताब काफ़ी कुलैनी जिल्द नंबर 8 सफ़ा 310।
आसमान से इससे पहले भी सदाएं आई हैं जो कभी अजाब बनकर और कभी तंबीह बनकर लोगों के कानों तक पहुंची हैं। मिसाल के तौर पर जब पैगम्बर इस्लाम खत्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवल्लिद हुए तो शैतान ने आवाज़ बुलंद की थी और अपनी मायूसी का इजहार किया था। उसी तरह से जब ये वक्त आखिर आवाज़ होगी तो इसकी चंद खुसूसियात हैं। हर इंसान इस आवाज़ को अपनी ही ज़बान में सुनेगा। किताब अल-गैबा सफ़ा 274 हदीस 54। ये निदा आसमान से आएगी। किताब अल-काफ़ी जिल्द 8 सफ़ा 310। इस आवाज़ को नज़दीक और दूर दोनों के अफराद बराबर सुनेंगे। बिहारुल अनवार जिल्द 51 सफ़ा 109 हदीस 42। ये आवाज़ ऐसी होगी कि सोने वाले डर जाएंगे और उन पर वहशत तारी हो जाएगी। किताब अल-गैबा सफ़ा 254। ये आवाज़ मोमिनों के लिए रहमत और काफिरों के लिए अजाब होगी। किताब बिहारुल अनवार जिल्द 51 सफ़ा 109 हदीस 42। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ज़ुहूर से 6 महीने पहले दुनिया भर में बड़ा खलफशार होगा और इस 6 महीने में बहुत सी अलामात लोगों पर ज़ाहिर हो जाएंगी। वहीं इस आवाज़ के लिए जो वक्त मुअय्यन किया गया किताबों के हवाले से ये मिलता है कि कुछ रवायात वो हैं कि जिनमें आसमानी निदा का वक्त ज़ुहूर से पहले होगा। किताब अल-गैबा सफ़ा 254। और बाज़ के मुताबिक ये आवाज़ ज़ुहूर के साथ बुलंद होगी। किताब अल-गैबा सफ़ा 263 और किताब कमालुद्दीन जिल्द 1 सफ़ा 330 हदीस 16। और कुछ रवायात ऐसी भी हैं जो इस आवाज़ को ज़ुहूर के बाद और क़याम से पहले सुनने के लिए बयान करते हैं। किताब मुजमे अहादीसुल इमामुल महदी पुरानी जिल्द 3 सफ़ा 489 हदीस 1060। बाज़ रवायात के मुताबिक ये आवाज़ रमज़ान के महीने में आएगी। किताब अल-गैबा सफ़ा 254। जबकि बाज़ के मुताबिक ये आवाज़ रजब के महीने में सुनी जाएगी। किताब बिहारुल अनवार जिल्द 51 सफ़ा 109 और हदीस 42। और कुछ रवायात ऐसी भी हैं कि जो इस आवाज़ के लिए रोज़े आशूर का दिन मुअय्यन करती हैं कि यानी 10 मुहर्रम को ये आवाज़ बुलंद होगी। और इस रवायत को नक़ल किया गया मुजमे अहादीस इमाम महदी में हुज्जतुल इस्लाम पुरानी ने जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 489 और हदीस 1060। हालांकि बाज़ उलमा का ये मानना है कि ये आवाज़ इमाम आली मकाम के ज़ुहूर से ठीक पहले शुरू होगी और जब तक इमाम की आलमी हुकूमत कायम न हो जाए तब तक ये आवाज़ आती रहेगी ताकि लोग हिदायत को हासिल कर सकें। हम जैसा कि जानते हैं कि जब जब अल्लाह का नुमाइंदा दुनिया पर आया है तो शैतान ने भी अपनी करतूतें दिखाई हैं। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि आसमान पर अल्लाह की आवाज़ तो आए जो इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ और उनके शियों के हक़ पर होने को बताए और मुकाबले में शैतान अपना काम न करे, ये नहीं हो सकता। लिहाजा एक और आवाज़ भी आएगी जिसे शैतानी निदा का नाम दिया जाता है। कुछ रवायात में ये बात जिक्र हुई है कि उसी दिन आखिर में शैतान की निदा भी आएगी जिसका मकसद लोगों को इमाम महदी के बारे में शक व तरदीद में डालने की कोशिश होगी। शैतान कहता है कि जान लो हक़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान और उसके पैरोकारों के साथ है। वो मज़लूम कत्ल हुआ, बस खून उस्मान के लिए क़याम करो। किताब अल-गैबा सफ़ा 261 हदीस 19 और 20। ये आवाज़ कुछ उसी तरह से है कि जैसे हक़ के नुमाइंदे और बिला फ़स्ल खलीफा मौलुल मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब खिलाफत ज़ाहिरी को संभाला तो उनके मुकाबले में शैतानी ताकतों ने माजी में हुए एक कत्ल को इमाम अली मकाम की गर्दन पर डालते हुए उनके सामने तलवारें उठा लीं और फिर जंग सिफ़ीन मौलाए कायनात को लड़ना पड़ी। उसी तरह से मौलाए कायनात का जब ये आखिरी वारिस ज़मीन पर अदल व इंसाफ की खातिर क़याम के लिए खड़ा होगा तो मुकाबले में शैतान फिर वही हरबा अपनाएगा। और इस हदीस से ये बात भी साबित हुई कि अगर इमाम ज़मान के सामने मुकाबले में कोई आवाज़ बुलंद होती है तो वो शैतान की ही आवाज़ हो सकती है।
چاہے وہ سن 36 اور 37 ہجری ہو اور چاہے پھر وہ کوئی بھی زمانہ ہو۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب مولا کائنات نے تلوار اٹھا کر حق اور انصاف کی حکومت کو قائم کرنا چاہا تو کچھ افراد شک اور تردید میں پڑتے ہوئے امام عالی مقام کے سامنے جنگ کرنے سے ٹال مٹول کرنے لگے، جس کی بنیاد پر صفین کی جنگ کافی لمبے عرصے تک کھنچ گئی تھی۔ ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ امام وقت کی آواز بلند ہونے کے وقت ہم ان کے خلاف نہ ہو جائیں۔ دیگر بعض روایات کے مطابق ندائے شیطان میں لوگوں کو مسیحیت کی طرف بلایا جائے گا۔ کتاب التشریف ابن طاؤس صفحہ 133۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان دو قسم کی روایات میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ امام مہدی کے خلاف فعال ہر گروہ نے مختلف آوازیں بلند کرنی ہوں۔ ان آوازوں کو شیطان کی طرف نسبت دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اٹھتی ہیں۔ کتاب ندائے آسمانی نشانۂ ظہور محوری صفحہ 70 اور 71۔ وہیں دوسری طرف کتاب ندائے آسمانی نشانۂ ظہور میں صفحہ نمبر 71 پر بھی ان باتوں کو نقل کیا گیا ہے۔ آسمانی ندا اور شیطانی ندا کے درمیان فرق بھی بیان ہوا ہے۔ صیحہ آسمانی معجزاتی طور پر آئے گی اور شیطانی ندا مادی وسائل کی مدد سے آئے گی۔ کتاب ندائے آسمانی نشانۂ ظہور صفحہ 71۔ سید محمد صدر اپنی کتاب تاریخ الغیبۃ الکبریٰ میں ظہور کی بعض علامتیں بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک ندائے آسمانی ہے جو معجزاتی طور پر آئے گی۔ کتاب تاریخ الغیبۃ الکبریٰ شہید صادق صدر صفحہ 480۔ مہدویت کے محقق خدا مراد سلیمیان کا کہنا ہے کہ روایات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آسمانی ندا طبیعی نہیں ہوگی۔ فرہنگ نامہ مہدویت سلیمیان صفحہ 442 اور 443۔ اس کے برخلاف بعض کا کہنا ہے کہ ندائے آسمانی مصنوعی سیارات جیسے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوگی، لہٰذا یہ نتیجہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ معجزاتی طور پر ہوگا۔ کتاب بررسی نشانہ یہ ظہور اسماعیلی صفحہ 260 اور 261۔ جس نے جو بھی لکھا پرانی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے اور ہم کو جگایا ہے کہ یہ تمام فتنے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس لیے کہ جب آسمان سے آواز آ جائے کہ مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ جب یہ نشانیاں واضح ہو جائیں گی اور ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی کوئی نہ تبدیل ہو تو پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ اور بازگشت کی امید ختم ہو جائے گی اور پھر انسان امام عالی مقام کے مقابلے پر ہوگا۔ ہر وقت دعا کریں کہ ہمارا ایمان ہمارے سینوں میں سالم رہے، بالخصوص جب امام عالی مقام تشریف لائیں تو ہم ان کے انصار اور آوان میں شامل ہوتے ہوئے کہیں لبیک یا داعی اللہ۔